सदना जन तोरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको बेसी अनेक। बाबा जय घर करता कीरत होए। सो कर राख वडाई तोए। बाबा जय घर करता कीरत होए। सो कर राख वडाई तोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। आओ बाणी दी विचार नाल जुड़ना करिए। उस तो पहला गुरु चरणा विच लवाइए हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए, बुलंद गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश। ये पवित्र वचन सतगुरु नानक देव महाराज जी की पवित्र बाणी सोहला साहब जी का दूसरा शब्द है, जिस दे राही धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज सृष्टि नूं ये उपदेश बख्शदे हन कि हर थां ते इको ही परमेश्वर रमिया होया है। भावें कि सृष्टि अनेकां रूपां दी है, एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। वो एक निर्गुण परमेश्वर अनेकां हो गया, सृष्टि बन के कुदरत बन के ते फिर कुदरत विच एक हो के वस गया। कुदरत करके वसिया सोए। सृष्टि दे अनेकां रूप बना के फिर उहदे विच ओह आप ही वसिया होया है। जिस तरह संसार दे विच 6 शास्त्र हन और इन्हां 6 ही शास्त्रां दे अलग अलग उपदेश हन भावें, पर अखीर ते जाके ये 6 ਦੇ 6 शास्त्रां विच परमेश्वर की गल ही प्रगट होंदी है। परमेश्वर की ही महिमा है। 6 घर 6 शास्त्र हन, 6 गुर, इन्हां नूं लिखण वाले 6 ऋषि हन,
6 ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੀਜਣ ਤੇ ਉਗਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼, ਭਾਵ ਉਹ ਭੂਕਾਂ ਜੀਆਂ ਉਗਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਥੂ, ਭਖੜਾ, ਇੱਟ ਸਿੱਟ, ਸਵਾਂਕ, ਡੀਲਾ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੀਜਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਗਰਦੇ ਆ, ਪੱਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉੱਗਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੈ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ। ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ 6 ਨੇਤਰਹੀਨ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 6 ਨੂੰ ਲਿਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ,
और उन्हां छेयां नूं हाथी विखाया गया। हुण दिसदा तां है नहीं, ते उन्हां नूं हथ ला के स्पर्श करा के टोह के दिखाया गया। कहंदे एक नूं हाथी दे पेट ते हथ लवा दिता, एक नूं ओहदी वड्डी लत्त उत्ते हथ लवा दिता, एक नूं ओहदा सुंड जिहड़ा है उस ते हथ लवा दिता भी आ हाथी है, एक नूं पूछ ते हथ लवा दिता, ते एक नूं ओहदा वड्डा सिर दिखाया। टोह के उहने हाथी दा सिर देखना कीता। फिर उन्हां नूं पुछया गया भी दसो हाथी किहो जिहा। एक नूं ओहदा कंन फड़ा दिता गया, उन्हें कंन वेख्या टोह के वड्डा सारा। हुण उन्हां ने जिहो जिहा जजमेंट कीता, जिन्हें लत्त नूं हथ लाया वो कहना भी थंम वर्गा है हाथी यार, जिवें आ पिलर खड़े आ गोल, हाथी इदां दा। पर पूरा हाथी नहीं दस सकिया वो किहो जिहा। दूजे नूं जिहने पेट ते हथ लाया सी वो कहंदा ढोल वर्गा है, ते जिहने सुंड नूं टोया सी वो कहंदा इह तां केले दे पौधे वर्गा है। कहो सतनाम श्री, केले दा पौधा सीधा हुंदा है। इसे तरह ही गुरु प्यारो जी ने पूछ नूं हथ लाया सी, उहने उस नूं रस्से वर्गा समझिया, ते जिसने उहदा सिर टोह के देखिया सी वो कहंदा इह तां यार पहाड़ी जी वर्गा है, गहीरे जे वर्गा है। पर गुरु प्यारिओ वो भावें एक दूजे नाल सहमत नहीं, क्योंकि 6 दे 6 दे बयान अलग है। कोई कहना पिलर वर्गा है, कोई कहना पहाड़ वर्गा है, कोई कहना पखे वर्गा है, जे हथ वाला पखा हुंदा है। जिन्हें कन्नां नूं फड़िया सीगा वो कहना पखे वर्गा है। तो इस तरह समुचे हाथी नूं उन्होंने हथ ला के देख लिया 6 ने। 6 दे बयान अलग अलग है, 6 शास्त्र लिखे ऋषियां ने, उन्हां 6 की भी सोच अलग अलग है। पर उन्हां सारियां दी सोच एक थां ते जाके मिलती है, परमेश्वर ते अखीर ते जाके मिलती है। जिवें उस हाथी नूं टोहण वालियां ने अलग अलग उहदे अंगां दे नाम दसे, पर हाथी किसी ने नहीं देखिया। इस तरह परमेश्वर नूं देखिया नहीं किसी ने भी, उन्होंने अलग अलग बयान किया जाता है। पर है सतगुरु नानक देव जी कहते हर थां ते परमेश्वर वसिया होया। गुर गुर एको बेस अनेक, गुर इको ही आ सारियां दा परमेश्वर। भावें कि उस दे अनेकां शास्त्र बन गए, अनेकां ग्रंथ लिखे गए, अनेकां वेदांत लिखे गए। 10वें प्रीतम भी कहते आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। जिन्नी किसी की बुद्धि है उन्नी क उन्होंने उसनूं वर्णन कर दिता। जिमें आकाशा जो बिजली चमकदी है, हुण जे कोई कहे वो तलवार वर्गी है, कोई कहे वो अग वर्गी है, कोई कहे एक लहर की तरह है। पर उस बिजली का वजूद है जिहड़ा उसनूं किसी ने सही बयान नहीं कर सकिया। पर हाँ उहदे विच भी उसकी जोत है। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि वह परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख 6 शास्त्रां दे गुरुआं दा गुरु एक है। भाव जिवें जाप साहिब च लिखते हैं नवों सुर सूरजे, नवों चंद्र चंद्रे। सूरजां नूं प्रकाश देने वाला वो है, चंद्रमा नूं प्रकाश देने वाला वो है।
ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਹਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ 6 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੈਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ। ਵਿਸੋਏ ਚੱਸਿਆ ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋ ਹੋਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲ, ਮਹੀਨਾ, ਹਫ਼ਤਾ, ਦਿਨ, ਪਹਿਰ, ਮਿੰਟ, ਸਕਿੰਟ, ਘੰਟੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸੋਏ, ਵਿਸਿਆਂ, ਚੱਸੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤਾਂ, ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ 15 ਵਾਰੀ ਫਰਕਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸਾ ਬਣਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫਰਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਣਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਾ ਬਣਦਾ, 15 ਵਿਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ 15 ਚੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ 30 ਚੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 60 ਪਲਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਬਣਾਤਾ, 7.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇਰ ਤੇ ਚਾਨਣ, ਇਹ 2 ਪੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। 2 ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 12 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਸ, ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਹਨ।
और उन्हां ही महीनिਆਂ ਦੇ नाम ਜਿਹੜੇ रखे गए ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਚੇਤ। ਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਤਨਾ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਤਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੂਪ ਹਨ, 4 ਵਰਨ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, 4 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਤੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸ਼ ਹੈ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਰਨ ਜਾਤ ਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 6ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ, ਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ 6ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਨੀਚ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਹੀਮ ਓਈ, ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਭੂਲ ਭਰ ਮਾਨਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਤੋਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਬਾਰੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ
सृष्टि नूं तारदे होए जगन्नाथ पहुँचे। जगन्नाथपुरी दे विच पहुँच करके उथों दा एक मंदिर है मंगू मठ। पिछे ही उस मंगू मठ अस्थान का बड़ा रौला भी चलिया, क्योंकि उस मंगू मठ के अस्थान ते बाबे नानक दे चरण पे है। ते संसार मूर्ख मत वाला इहो जिहा है कि किसी धर्म नूं खत्म करना होवे उहदे धार्मिक किताबां, धार्मिक ज्ञान, उसके धार्मिक स्थानां नूं खत्म करना शुरू कर दिओ, आपे खत्म हो जाऊगा। खैर चलो मनोबिरतियाँ उत्थे रखिए। गुरु नानक सब दे सांझे है। मानस की जात सब है एक है पहचान वो, करता करीम सोई राज कर हीम ओही, दूसरो ना भेद कोई भूल भर मानवो। सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਦਾ गुरु नानक सारिਆਂ ਦਾ मालक है। ਉਹ अपनी छोटी मत का ख्याल है, जिन्हों का भांडा छोटा है उन्होंने फिर उहो जिहा मिलना। परमेश्वर नूं किसी एक धर्म दे विच नहीं वंडिया जा सकता। जिस तरह सूरज नूं एक रुत विच नहीं मन्निया जा सकता, सूरज हरेक रुत विच है। परमेश्वर भी हर थां ते वसदा है। जब उस मंगू मठ दे कोल धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहुंचे तो की वेखदे न, समुंदर के किनारे ते गुरु प्यारिओ यह मंदिर है मंगू मठ। तो उत्थे की होया, जदों धन गुरु नानक देव जी उस जगह ते पहुंचे तो उत्थे पांडे कुछ आरती कर रहे सन। जिमें धन गुरु नानक देव महाराज जी ने जगह जगह ते जा करके गुरु प्यारिओ लोकां नूं ज्ञान दिता, उस ज्ञान दे राही परमेश्वर नाल जोड़ना कीता। दसदे है वो समुंदर दा पानी भी खारा सी ते सतगुरां ने अपने कर कमलों के नाल उत्थे मिठे जल दा स्रोत भी लाया उन्हां लोकां दे वास्ते। जगन्नाथ बौली साहब हुण भी उस स्थान ते सुभाएमान है। सतगुरां दा इह सुभाअ रहा है कि वड्डे वड्डे धार्मिक स्थानां दे उत्ते उथों दे वसन वाले पुजारियां विचों जो अज्ञानता पैदा हो गई सी, जो उन्हां दे अंदर गुरु प्यारिओ धर्म दा असली मकसद भुल चुकिया सी, जिन्हां नूं उन्हां नूं धर्म दा असली मकसद दस्सण वास्ते सतगुरु जान बुझ के उन्हां स्थानां ते जांदे, क्योंकि जे धर्मी बंदे सुधर गए तो दुनिया आपे ही सुधर जानी है। क्योंकि सानू ज्ञान जिहड़ा धार्मिक स्थानां तो मिलना है। मुसलमानां दे मक्के भी गए सतगुरु, हिंदू मादे वड्डे वड्डे थावां ते गए, वड्डे वड्डे राजियां नूं भी जाके कन्नों फड़िया और उन्हां दे मूँह ते कहा कि तुसी संसार दे भले वास्ते आए, पर तुसी दुनिया नूं लुटन लगे हो। उल्टी वाड़ खेत को खाण वाली गल, राजे शीह मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते। जिथे गुरु नानक गया उन्होंने जगाउणा चाहया। तो इस तरह जदों मेरे प्रीतम जी उत्थे पहुँचे तो उत्थे जद पांडियां ने सतगुरां नूं उत्थे मिठे जल का झरना प्रगट करते वेखिया तो कई बारी अगला कहता साडा बनाया रिकॉर्ड हुण इहने तोड़ देना, तो कोशिश करते आ उहनूं खत्म किया जाए। उसकी जिहड़ी ज्ञान की बख्शिश है उसनूं प्रगट ही ना होण दिता जाए। तो उन्होंने धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे नाल उथों दे ब्राह्मणां ने इतराज किया, जिवें गंगा दे उत्ते सतगुरां ने जान बुझ के उल्टे पासे पानी सिटिया। गंगा के किनारे ते खड़ के ब्राह्मण लोग गुरु प्यारिओ आकाशां दे वल पानी दे रहे सी। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने किनारे ते खड़ के छिप दे वल नूं पानी सिटना शुरू किया। इधर नूं गंगा इस पासे पिछले पासे आ। सारे हैरान हो गए भी ये की गल है, कल्ला ही बंदा जिहड़ा साध ये पुठे पासे पानी सिटी जांदा है।
कई ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर पूछा भी तुसी इधर पानी को सिटी जाने हो। बादशाह कहते तुसी उधर किहनूं दिंदे हो? कहंदे असीं तां सूरज नूं दिंदे आ। कहंदे सूरज नूं क्यों दिंदे हो? कहंदे जे साडे मरे होए बजुर्ग है ना, वो सूरज दे पुत्र धर्मराज दे कोले आ। साडे मरिया होयां दीयां रूहां धर्मराज दे कोल है। धर्मराज सूरज दा पुत्र है। असीं धर्मराज दे प्यो नूं पानी देवांगे ते धर्मराज जिहड़ा है वो साडे प्यो नूं पानी दिंदा। कहो सतनाम। कहंदे ठीक है सिटी चलो। ते पातशाह इन्नी गल सुन के दोबारा फिर इधर नूं मूँह कीता ते फटाफट बुक भर के फिर सिटने शुरू कीते बाहर नूं किनारे ते। वो कहंदे तू दस्सिया नहीं किधर सिटदा? वो कहंदा मैं तां भाई इधरों ननकाना साहब तो आया, पंजाबों आया। उत्थे मैं खेत कणक बीज के फसल बीज के आया सी अपनी, ते मैं कल्ला ही हाँ, माँ प्यो दा मेरा कोई होर भरा नहीं हैगा। मैं सोचिया तुसी सूरज नूं पानी दे रहे हो ते मैं अपने खेतां नूं पानी ला दियां। कहो सतनाम श्री। किसी बंदे नूं पंजाबी वाल नूं अंग्रेजी समझाइए तो नहीं समझ आउंदी, उहनूं ओहदी बोली समझाइए तो सौखी समझ आ जाती है। इस करके उत्थे आए हुए अनपढ़ लोकां नूं ब्राह्मणां दीयां गल्लां समझ तां नहीं आईयां, सत करके मन लियां भी हो सकदा पहुँचदा होऊगा। पर आह गल तां हरेक अनपढ़ ते पढ़े दे समझ आउण वाली सी बई उत्थे बुक्कां नाल सिੱਟਿਆ पानी खेतां विच किवें पहुँचूगा। वो ब्राह्मण कहन लगे तेरा पानी खेतों में किवें पहुँचूगा? कहने क्यों? सोला सूरज किन्नी क दूर है। बड़ा समझाउण दा ढंग अनोखा है मेरे प्रीतम बाबे नानक दा। उन्होंने अपने ग्रंथां मुताबक सूरज नूं धरती तो करोड़ां को उच्चा दसिया। कहंदे फिर मेरा इत्थों जिहड़ा ननकाना साहब आ जां सुल्तानपुर लोधी है या करतारपुर है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ गंगा तो 1000 को ला लो। वैसे दिल्ली इथों 500 किलोमीटर है। कहते ला लो मान लो 1000 को होवेगा ते तुहाडा करोड़ां को ते पानी जा सकता, मेरा 1000 को ते नहीं जा सकता। कहते किवें जावेगा? पानी तो इत्थे डुल्ली जाता। कहते डुल्ली सोडा भी इत्थे जाता, मुड़ के जाता सोडा भी किते नहीं हैगा। पानी का सवाह नीवें थां जाण दा। सूरज जिहड़ा है उच्चे थां ते उत्थे पानी नहीं जा सकता, सेंस भी नहीं बनती। फिर पानी जिहड़ा अग दे कोले मच जाता, जाके सूरज गर्म है उत्थे किवें पहुँचूगा? ते जे मैं गंगा तो इथों नहर पट लवां, खाल पट लवां तो एक दिन ननकाना साहब पानी लै जाऊँगा। कहो सतनाम श्री। फिर जिहड़े विचारे अनपढ़ लोग उन्होंने मगर ला के बुक भर भर के इदां पानी सिट रहे सी, वो सारे इकट्ठे होकर बाबे नानक दीयां गल्लां सुनन लग पे ते उत्थे बिठा करके उन्होंने ज्ञान उपदेश दिता। जो जगन्नाथपुरी के लोगों ने बेनती की, महापुरुषों साडे कोले पानी का स्रोत नहीं है, आ दरिया तो पानी का है पर यह खारा पीण योग पानी नहीं है, कृपा करो। तो बाबा जी ने उत्थे पानी प्रगट कर दिता। उतों के ब्राह्मणा पंडियां नूं ईर्खा हुई ते आरती करन लगे। गुरु प्यारिओ ते बाबे नानक नूं कहंदे तूं भी साडे नाल आरती कर। धन गुरु नानक देव जी कहंदे भी मैं तां नहीं आरती करदा। कहंदे क्यों, तू क्यों नहीं करदा? कहंदे मैं तां वेखदा हुन्ना। कहंदे कित्थे वेखदा हुन्ना? कहंदे आरती तां हर वेले हो रही है, तुसीं किहदी आरती करदे हो? कहंदे जगन्नाथ दी। पातशाह कहंदे कित्थे है जगन्नाथ? कहंदे जगन्नाथ आ देखो ना मूर्ति बनी हुई है सामने मंदिर दे विच। कहंदे अच्छा ये जगन्नाथ है। भलिओ मानसो, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। ये दाता ये सृष्टि ये संसार किड्डा वड्डा है ते परमेश्वर इदों वड्डा होना चाहिए। ये तुहाडा जगन्नाथ नहीं है, मूर्ति पूजा है। उहदी आरती तो हर वेले कुदरत कर रही है। फिर पातशाह जी ने उत्थे सोहला साहब का तीसरा शब्द उच्चारण किया। पातशाह जी कहंदे
आसा राग धनासरी महला पहला। ये आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। कहने कित्थे आरती हो रही आ? धन गुरु नानक देव जी कहते आकाश थाल है, जिवें तुसी थाल दे विच हीरे मोती जां दीवे जगा के रखे न, फुल रखे है। अकाल पुरख ने आकाश रूपी थाल दे विच तारे मोतियां दी न्याई रखे न। गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो हिमालय पर्वत वालों जिहड़ी खुशबू आ रही है, ये उस दी अगरबत्ती है, धूप है। या तुहाडी निक्की जी अगरबत्ती नाल किवें सर जूगा? एडा वड्डा परमेश्वर, जिड्डा वड्डा संसार उड्डा ही परमेश्वर है। हिमालय पर्वत वालों चंदन के दरख्तां की खुशबू उहनूं धूप दी न्याई जा रही है। गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। आकाश विच उहने तारे मोतियां दी तरह टकाए हुए न, जिहड़े चमकदे आ। रब चंद दीपक बने सूरज ते चंद्रमा दो दीवे लगातार आरती करवा रहे है। दिने सूरज जगदा है, रात नूं चंद्रमा जगदा है। ये दो दीवे तारे मोतियां दी न्याई। धूप मलयान लो हिमालय पर्वत जिहड़ा है उधरों आ रही खुशबू उसनूं जा रही है। ये ओदी धूप है, अगरबत्ती है। पवन चवरो करे वग रही जिहड़ी हवा है, मानो परमेश्वर ते चौर करदी है। सगल बनराए फुलंत ज्योति। तुसी फुल जिहड़े हन पौदियां तो तोड़ के लिआंदे है, पर सारी बनस्ती अपने बच्चे भाव फुल पैदा करके परमेश्वर तो वार रही है आप। तुसी तां किस तो खो के लिआंदे न, तोड़ के लिआंदे है, पर ये बनस्पति आपदे बच्चे आपदे फुल पैदा करके उस परमेश्वर तो वारदी है। ये खुशबू भी परमेश्वर वाल जाती है। इस करके पातशाह जी कहते पवन चवरो करे सगल बनराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। वो साडे दुखां नूं डरां नूं खत्म करने वाले परमेश्वर, तेरी कितनी सोहनी आरती हो रही है। तो इस तरह ये सुन करके गुरु प्यारिओ कहने पंडित हैरान हो गए। कहने लगे ठीक आ, मन लेने ये आरती हो रही है। पातशाह जी रुक गए। कैसी आरती होए पव खड़ना तेरी आरती रहाओ। अणहत्ता शब्द वाजंत भेरी अणहद वाजे। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਢੋਲ ਬਾਜੇ ਤੂਤੀਆਂ ਬੰਸਰੀਆਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ये आवाज़ां नाम जपण वालियां ने आपदे अंदरों सुनिया। मैं पहला बेनती की है कि संसार ने जो भी बनाया है कुदरत नूं देख के बनाया। पहला कुदरत परमेश्वर ने बनाया, मनुख ने उसकी नकल की है, रीस की है। तो अणहद वाजे जिहड़े हर मनुख के अंदर भी वजदे हन, उन्होंने दे बारे समझाउण वास्ते ऋषियां ने बाहर भी बना के दिखा दिते भी इदां दीयां आवाज़ां अंदर आ रही। नामदेव जी ने सुनिया, उन्होंने कह दिता अणमड़िया मंदल बाजै बिन सावन घन हर गाजै।
कहते बिना मढ़िया होया ढोल वज रहा है। संगी साथी कहते कित्थे वज रहा, कहते बिना मढ़िया होया। ये तो मढ़िया भी ढिला हो जाए तो वजदा नहीं। नामदेव जी कहते बिना मढ़िया होया वज रहा है। अणमढ़िया मंदल बाजै बिन सावन घनहर गाजै, बादल बिन बरखा होई। सौन तो बगैर बिजलियां चमक रही हैं, बदलों तो बगैर मीह पै रहा है। संगी साथी कहते हो कित्थे रहा है भी तो दसो। कहते मनुख दे अंदर सानू दिसदा नहीं। कहते जो तत्त विचारा कोई ये उहनू दिसदा जिहड़ा उस तत्त नू जानदा है, जिहड़ा परमेश्वर नाल जुड़ना करदा है, ये उहनू समझ आउंदी है। इस गल नू सतगुरू ने बाणी च लिखिया, घर महक हर दे खाए दे। कोई मैनू इस घर विचों मेरा घर विखा देवे किहड़ा। शरीर दे विच गुरु प्यारिओ बटुआ एक 72 आधारी। शरीर एक बटुआ इच 72 घर हन। 72 कोठड़ियां भी किया भगतां ने किते। उन्हां 72 कोठड़ियां चों 10वें द्वार की एक कोठड़ी जीव आत्मे की है, जिथे बैठ के शांति ले सकता है। नहीं तो जीव कदे फेफड़ियां च, कदे गुरदियां च, कदे पेट च, कदे लत्तां पैरां च, कदे हत्थां दे विच, किरत करन दे विच, कदे जीभ दे स्वादां दे विच, कदे अखां नाल देखण दे विच, कदे कन्नां नाल चुगलियां निंदियावां सुणन दे विच परवर्त रहिंदा है। इन्हां 72 कोठड़ियां विच भटकदा रहिंदा है। इहनूं आपदे घर दा पता नहीं लग्या कि मैं कित्थे बैठा। तो सतगुरु पातशाह कहंदे घर में घर दे खाए दे, सो पुरख सो सतगुर पुरख सुजान। उन्होंने मैं अपना गुरु मनांगा। मैनू कोई मेरे घर विचों है शरीर रूपी घर चों मेरा ठिकाना दस देवे कि तू इत्थे खड़िया कर। वो सिमरन दी कला है असल विच। जिथे कि बच्चा जन्म तो पहला जुड़िया होया सीगा, उथों डॉक्टर उन्होंने रवा करके पटदे है। उसे सिमर नूं पातशाह ने कहा कि सानू हुण वो सिमरन लभना चाहिए है जिहड़ा सिमरन आपां जन्म तो पहला करदे सी। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। पावक सागर था लहर में तारो तार नहारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहा, ऊहा तुहारो धोरा। इत्थे ते उत्थे मां दे उधर विच, इत्थे ते उत्थे दरगाह दे विच जदों श्री छड्ड के जाना, मैनू तेरा आसरा, मैनू वो सिमरन दस जिहड़ा मैं जन्म लैण तो पहला जपदा सी। उत्थे ना असीं राम जाणदे सी, ना वैगुरू कहण जाणदे सी, ना कोई अल्लाह खुदा कहंदे सी। उत्थे डायरैक्ट जीव परमेश्वर नाल जुड़िया होया सीगा। तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे, उत्थे तेरी रख अग्नि उधर माहे। तो मेरे प्रीतम जी ये गल कह करके चुप कर गए। कहंदे कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, अनहत्ता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। बेअंत बाजे बजदी है, उस घर की यह निशानी है। जे कोई मैनू घर दस देवे, घर में घर दिखाए दे, सो सतगुर पुरख सुजान। 5 शब्द, 5 तरह के शब्द बजदी है। ढोल बाजा, बंसरियां दा, पीपणियां दी आवाज़, बरीक घुंगरूआं दी आवाज़, इदां दियां 5 आवाज़ां उत्थे आउंदियां। जे किसी नूं सही डायरैक्शन मिल जावे, जे सुरत किसी दी सही ढंग नाल उत्थे जुड़ जावे, उथों दी यह निशानी है कि उथों ये आवाज़ां सुनाई देणगियां। उदाहरण के तौर पर साडे घर की लाइट बुझ गई, कितों तार टुट गई है, तो बिजली वाला फिर उन्होंने ठीक करता है, जां घर का कोई मैंबर ठीक करता है। लभदा फिरदा कित्थों कट्टी गई तार, ये उस कट्टी हुई तार नूं लभदा ते फिर कोई जोड़ लभदा जो ढिला होया जां खुलिया। जदों फड़ के तार नूं सही तार ते रखदा, बल्ब जग पैंदा ते निशानी है कि इत्थे ही नुक्स है। कहो सतनाम श्री। देखण वाला परिवार कहंदा इत्थे ही आ, इत्थे ही आ, इत्थों ही जोड़। जिथों असीं टुटियां दवारी उत्थे कौन जोड़े सानू। कहो सतनाम श्री। वो बाजे ताइयों सुनने बंद हो गए क्योंकि टुट गए हैं। ते टूटी गांढन हार गोपाल सर्व जिया में।
वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा साड़ी टुट्टी नूं गंढण वाला है। पर सानू ये नहीं पता कि असी जुड़े कित्थे सी उदों जिथों हुण टुट चुके हाँ। जां तिस भाना तां जम्मिया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। और बिजली की तार का जोड़ जद असी तारां इकट्ठियां करते हाँ, उधर पखे बल्ब चल पैंदे आ, तो ये निशानी है बई इत्थों ही टुट्टी सी। कहो सतनाम सी। आ चल पिया सारा सिस्टम, तो जिद्दे साडी अंदरला सिस्टम चल पिया उदे समझ लियो कि तुसी सही जुड़ गए हो। जे नहीं चलिया, नहीं दुखों का खात्म होया, तो हजे तक आपां सही जुड़े नहीं, हजे सानू वो कट लभिया नहीं जिथों साडा कट माया ने पाया। कहो सतनाम श्री। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे, अनहत्ता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। ब्राह्मण कहन लगे चल मनिया, यह जिहड़ा है उहदी आरती हो रही आ, ये सारी कुदरत उहदी आरती कर रही आ, ते जिहदी आरती हो रही है वो कित्थे आ, सानू उहदे बारे भी दसना करो। धन गुरु नानक देव जी कहन लगे उहदे बारे क्या दसां। सहस तव नैन नान नैन है तोहे को, वो तुहाडी मूर्ति की तरह दो अखां वाला रब नहीं है। ओदियां एक जां दो अखां नहीं, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ। काहे रे बन खोजन जाही, सर्ब निवासी सदा अलेपा तोही संग समाही। जावे किधर दी, बस इस गल का पता नहीं लग्या बई अंदर जाऊ किधर दी। है बाहर तो निकल गया अखां चों निकलिया किसी मूर्ति नाल, किसी सुंदर शरीर नाल, किसी सुंदर स्त्री मनुख दे नाल जुड़ गया। अपने अंदर वापस किवें जावे, ये गुरु कृपा करे। इनू डॉक्टरां ने बाहर कढ़ दिता। जब बच्चा जन्म लैंदा ना, उसनूं नवा धवा के उहदे अखां खोल के उहदे कन हथ मूँह साफ करके सब कुछ फिर उहनूं रवाउंदे आ। फिर उहदी सुरत बाहर निकलदी है ना, जदों फिर रोंदा तो फिर सारे हसदे है। वो तो रोंदा कि मैं उथों टुट गया, पर असी सारे हसदे हाँ कि बच्चा जम पिया, बच्चे ने जन्म ले लिया, बच्चा रो पिया, बच्चा ठीक आ। कहो सतनाम श्री। असल विच वो बच्चे नूं जदों ढूई तो थापड़िया जाता है, उहदी ढूई च लपड़ मारे जाते हैं ना बच्चे दे, जद उहदा साह लैण दा सिस्टम बदलिया जाता है। वो पहला साह लै रहा सी माँ के नाड़ूए तो, बच्चे नूं जन्म देण तो बाद नाड़ूआ कट के धुन्नी कोलों चंगी तरह बन दिता गया। एक गिठ ते 10 उंगलां हवा जिहड़ी है इहदे अंदर रोक दिती गई। ते जदों बच्चे नूं रवाया, इहने हौंका लिया ना, फिर वो इंजन की तरह टस, जिवें आपां इंजन की टस सिट दिंदे आं, पर टस चक लैंदे हां ना, हवा पार होण लग जांदी है। फिर आपां हैंडल मारदे आं, उहनूं चक्कर बन जांदे आ बहुत ज़्यादा। ते जदों उत्तों बंद कर दिंदे आ, फिर वह धक्के दे नाल टस्सां नूं चक चक के चलना शुरू कर दिंदा। इस तरह उहदा चक्कर बन जाता है। इस तरह मनुख का भी चक्कर बनाया जाता है। धुन्नी वाले पासों श्वास लेना बंद करके नक वाले पासों श्वास छू लैंदा। बच्चा रो करके हौंका लैंदा, जदों बस उहदे अंदर फिर फेफड़े चल पैंदे है ते उहनूं बाहरली हवा दे नाल जोड़िया जांदा। फिर जिथे पहला माँ के श्वास नाल जुड़िया होया सी, माँ जो खांदी है जो पींदी है उहदा असर डायरैक्ट बच्चे ते हुंदा सीगा। माँ दे खाधे दा बनिया होया खून ते श्वास डायरैक्ट बच्चे नूं नाड़ूए राही मिलदा। तो इस करके वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा का कोई अलग शरीर नहीं है। सहस तब नैन ना नैन है तोहे को, सहस मूर्त नैना एक तो ही। उसका एक शरीर नहीं है, ओदियां कोई दो अखां नहीं है। रहिंदे शब्द की विचार आपां कल नूं सरवण करांगे। बोलदियां ने एक अखर बाद घाट हो जांदे, समा समाप्ति ते है। इत्थे रोकण की आग्या बख्शो। इस आरती के शब्द राही धन धन श्री गुरु नानक देव जी होर की कुछ बख्शिश करते हैं।
ये आपां कल नूं सरवण करांगे। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू।